بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں دھوکے کی خوبیاں بھی خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ لوگ احساس نہیں کرتے بلکہ احسان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں تو انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ تھک کر بھی رکنا نہیں چاہیے ورنہ دوسرے آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر کیونکہ میں تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں جو تمہارا برا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اولاد کی ہے جو بد لہجی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اصلاح اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے کیونکہ کہیں وقت پر یہ دونوں دھوکہ نہ دے جائیں۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تم اس کی حقیقت جان جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ ہے آپ خود۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ عشق الہی جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان پوری دنیا بھول جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس ربڑ کی طرح ہے جو اپنے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس دنیا میں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور وہیں دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور یقین جانو پھر اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے
लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बिना आवाज़ के रोना इस दुनिया में बड़ा दर्दनाक होता है। जोर ज़बरदस्ती से चलते नहीं ताल्लुक, क्योंकि किसी परिंदे को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लेकर जोड़ना चाहता है। हमें बस सब्र आने की देर होती है और अल्लाह इंसाफ शुरू कर देता है। और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी है। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है, ताकि हम खालिक से तन्हाई की मजबूती समझें। वो आजमाता ही ऐसी चीज़ों से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती हैं, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प में तुम्हें अल्लाह से मिला दे। सब्र करो इस नियत से कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, फिर देखना वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देगा। रब को राज़ी करो, क्योंकि ये दुनिया तो किसी से राज़ी नहीं होती। इस दुनिया में दुआ नज़र नहीं आती, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें अदा करी, यानी फज्र और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इस दुनिया में धोखेबाज की ज़बान मीठी और दिल कड़वा होता है। भूख वापसी के रास्तों की फिक्र भुला देती है। इंसान ये जानता भी है कि खुदा उसे देख रहा है, लेकिन फिर भी वो गुनाह करते वक्त ये देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इस दुनिया में ज़्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी ख़त्म कर देती है। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। मायूसी इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है। मुश्किल वक्त इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेने आता है। ज़बान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। या अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। अगर नमाज के वक्त तवाफ़े काबा रुक सकता है तो तेरे कारोबार और काम क्यों नहीं। अगर तुमने नमाज छोड़ी तो समझ लो कि राहत और बरकत तुमसे छूट गई। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लेता है तो उसे ज़रूर सीधी राह की तरफ हिदायत की जाती है। बादशाहों के पास बैठने से कभी बादशाहत नहीं मिला करती, लेकिन औलिया अल्लाह की एक ही निगाह इंसान को बादशाह बना देती है। पीर के दिल में नक्शे खुदाबंदी होता है और मुरीद के दिल पर पीर का नक्श उभरता है। इंसान को जितना लगाव रोजी से है, अगर उतना लगाव रिस्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बड़ा हो जाता। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं, बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है, पर हाय अफसोस मैं उसे भी भूल जाता हूँ। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। मौलाना रूमी कहते हैं कि तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है, और तुझे समंदर तलाश कर रहा है लेकिन तू नहर की तलाश में है। सर हो सजदे में, दिल दगाबाजी में हो, तो भला ऐसे सजदों से कैसे खुदा राज़ी हो।
اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے، تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ پر ذلیل اور رسوا نظر آئے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، کیونکہ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے تو جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں عقل والا اپنے کام پر اور وہیں جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریے، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولادوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ دوسروں کی اچھائیوں اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیے، اس طرح آپ کے اندر غرور پیدا نہیں ہو پائے گا۔ صرف دعاؤں پر توقع کرنا بے عملی کی راہ ہے، اور بے عمل لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اس دنیا میں بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں
تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں
जिस शख्स ने अपने दिल को किना और बुग़्ज़ से पाक नहीं किया, वो कभी रूहानियत की किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकता। इंसान का पेट खाली हो तो उसकी नफ्स कमज़ोर हो जाती है। हम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे, और हम में से सबसे बदतरीन शख्स वो है जिसके शर से मखलूक खौफ ज़दा रहे। इस दुनिया में कुछ लोगों में ये सिफत होती है कि वो ऐब जानकर भी साथ नहीं छोड़ते। एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, लिबास बहुत कीमती पहनकर बाज़ार में बहुत अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बाखबर होंगे कि उस बाज़ार में उनका कफन भी मौजूद है। बेशक इस दुनिया में तमाम मुश्किलों का हल सजदे में है। ताल्लुकात की बुनियाद एहसास है, और एहसास हमेशा वही करता है जो खुदगर्ज नहीं होता। मौलाना रूमी कहते हैं कि अपने दिल पर लगे ज़ख्मों को नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी इज्जत की बका के लिए तन्हाई पर खुश रहो, खर्च करो, दिखावा ना करो, और ख़ुद को इसलिए बुलंद ना करो कि तुम पहचाने जाओ और तुम्हारा नाम हो, बल्कि छिपे रहो और खामोशी इख्तियार करो, और इस तरह तुम सलामत रहोगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह की दोस्ती तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाही ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, और वहीं तेरा रब है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र तक खो देते हैं। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है, क्योंकि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो, और अकेले जीना सीखो। मौत के ऐलान के लिए इतना काफ़ी है कि तुम्हारे बालों का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाए। गुरूर में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफ़ी है। अपनी ज़बान से हमेशा होशियार रहो, क्योंकि ये ऐसा तीर है जो ख़ता करता है। दिलों में रहना सीखिए, क्योंकि गुरूर में तो सभी रहते हैं। इंसान के ईमान की पहचान वादे की पाबंदी से होती है। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने तजुर्बों से इबरत हासिल करो, इस तरह तुम बेहतर इंसान बन जाओगे। इस दुनिया में जब कमीने इंसान को बुलंदी मिलती है तो वो सरकशी पर चल पड़ता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी दिखाकर करना है। जब तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उससे ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। लोगों को माफ़ करके लोगों की नज़र में बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी सबसे बड़ी दानाई है। माँ भी इंसान है, लेकिन अगर वो दुआ करेगी तो आप खुदा को पा जाओगे। इंसानों के साथ नेकी ये है कि उनके हक से ज़्यादा उन पर मेहरबानी की जाए। तुम्हारा काम मोहब्बत की तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उन रुकावटों को तलाश करना है जो तुमने
मोहब्बत के खिलाफ खड़ी की हैं। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरे रूह को कोई साथी मिल जाए, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूँ। इस दुनिया में हर उगने वाली चीज़ ये बताती है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। इस दुनिया में इंसान की आजिज़ी उसकी इंसानियत की मिराज है। मुसब्बत सोच माशरे का हुस्न है। इस दुनिया में हसद अल्लाह की तकसीम को कबूल ना करने का नाम है। मोहब्बत खूबियाँ तलाश करती है जबकि बुग़्ज़ ऐब ढूंढता है। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह इंसान को उसी के हाथों से तोड़ता है। इंसान को शूर और इख्तियार इसलिए ही दिया गया है कि वो इसके ज़रिए मारिफत इलाही तक पहुँच सके। जो अक्ल सलीम रखते हैं वो खुलूस इख्तियार करते हैं। सच्चा मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की ग़ुलामी पर कभी भी आमादा नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात से दोस्ती रखिए, फिर देखना आसानियाँ आपकी ग़ुलाम होंगी। अपनी शख्सियत पर सरमायाकारी कीजिए, फिर देखना मुनाफा आपको हैरान कर देगा। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों की कुछ निशानियां ना बता दूं? नंबर 1 बद इखलाक, नंबर 2 बद मिजाज और नंबर 3 तकब्बुर करने वाला। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, उसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। नमाज नूर है और सदका दलील है, और सब्र रोशनी है और कुरान तेरी दलील है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर हम अपनी ज़बान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। इस दुनिया में हमें तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। झुक जाना ही मोहब्बत है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सजदा है। इस दुनिया का असल ख़जाना इल्म है और ख़जाने सिर्फ उन पर ज़ाहिर होते हैं जो उनको देख सकते हैं। इस दुनिया में जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफ़ा पहुँचने की उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीदें झूठी साबित होती हैं। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। सबसे बड़ी ज़ाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ी ज़ाती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। इस दुनिया में समझदार औरत उजड़े हुए घर को आबाद करती है, जबकि नासमझ औरत अच्छे भले आबाद घर को भी बर्बाद कर देती है। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक, इसलिए कोशिश ये करें कि आप सीधी राह पर हों। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती, क्योंकि मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। यकीन खाली दिल को भर देता है और वहीं बेयकीनी भरे हुए दिल को खाली कर देती है। इस दुनिया में इबादत के लिए फुर्सत की नहीं बल्कि तौफीक की ज़रूरत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के वसवसे या दिल के बुरे ख्यालात को माफ़ कर दिया है, जब तक कि इंसान उस पर अमल ना करे या ज़बान से ना निकाले।
اس دنیا میں مومن کا جی کبھی بھی خیر کی بات سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں، تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارا حقیقی دوست صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس دنیا میں شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، اس لیے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہو،
क्योंकि बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस दुनिया में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। इस दुनिया में लोग जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर गए हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं और गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, क्योंकि तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में लोग तो जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। हजरत अली ने फरमाया, खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाते हैं, खूबसूरत जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज है जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हासिल की तमन्ना, मकाम की तमन्ना, मर्तबे की तमन्ना, शोहरत की तमन्ना और चाहे जाने की तमन्ना को छोड़ दो, तुम्हारे गम खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं मिलती। अकल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। वो देने वाला है, जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे दे देता है। गमगीन ना हो, क्योंकि जो भी तुम खो देते हो उसको किसी ना किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि अकल ने सवाल किया कि मौत से ज़्यादा कोई और दर्दनाक चीज़ है, तो मौत ने जवाब दिया, महबूब की जुदाई मौत से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। दुश्मन हमेशा दिमाग का और दोस्त हमेशा किरदार का मुंतखब करो। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ें तेरे लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ें तेरे लिए हैं वो तेरे लिए ही हैं, इसलिए तू परेशान ना हो। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान का हिर्स और लालच उसको कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वही मिलकर रहता है। अपने वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। इस दुनिया में किसी को नाहक बातें सुनाना दिल से लज्जत इबादत को दूर कर देता है। कल मैं चालाक था और दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं समझदार हूँ और ख़ुद को बदल रहा हूँ। अफसोस, ये वो माशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अक्ल की अलामत है। जो रिश्ता तुम्हें तकलीफ़ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो। जब साथ देने वाला मुश्किलात पैदा करने लगे तो तन्हाइयाँ ही बेहतर होती हैं। अपनी ज़िंदगी के पुराने गमों पर अपने ताज़ा आंसू ज़ाय ना करो। शाम ज़िंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अपनी आवाज़ बुलंद करने के बजाय अपनी दलील को बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश की बरसात से खिलते हैं, ना कि बादलों की गरज से। इस दुनिया में आपके बाप के आंसू आपके दुखों से ना गिरें, वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता है, तो सोचो अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। अगर इस दुनिया में आपको जीना है
तो आपको अपने मसाइल से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको जीने का भी कोई हक नहीं। वसीला अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता, और अल्लाह ताला ही किसी को वसीला बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। किसी का असल रंग तब सामने आता है जब आप उसके लिए फ़ायदेमंद ना रहें। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़र्फ़ को लग सकती है। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। हमेशा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे आंसू भी अल्लाह से बातें किया करते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है जब आप दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। गलती उससे होती है जो मेहनत करता है, क्योंकि नाकामों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो, क्योंकि शोर मैदान में खेल रहे खिलाड़ी नहीं बल्कि वहां आए तमाशहीन किया करते हैं। कोई नहीं देखता कि आप किसके लिए कितना करते हैं, बल्कि वो सिर्फ वही देखते हैं जो आप उनके लिए नहीं करते। वक्त ने गिराया है तो वक्त ही उठाएगा, क्योंकि आज अगर जवाल है तो कल उरूज भी आएगा। गंदी सोच और पाँव की मौज कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हजरत अली ने फरमाया, जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं ख़त्म कर दो। बेहतरीन हम सफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। आपकी दुआ उस चीज़ को भी तुम तक खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा भी नहीं होती। इस दुनिया में जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा ना दुआ लगी। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए बेहतरीन इंसान हो। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवारों में से कील निकालने पर भी सुराख बाकी रह जाते हैं। अपने सच्चा होने की दुनिया को दलील मत दो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें तुम्हारा रब जानता है और इसलिए तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी अजियत क्या है? जब कोई इंसान अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत को कम होता हुआ देखे और फिर भी खामोश रहे। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में पछतावा भी ज़र्फ वालों के लिए होता है। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, लेकिन एक तेरा रब है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। इस दुनिया में जो चुगलखोर की बात पर यकीन करता है वो अपने दोस्त को अपने हाथों से खो देता है। बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं,
اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو وہی لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں کونے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا سا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا سا ہی ہے کہ آتے ہیں اذان پر اور چلے جاتے ہیں نماز پر۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ بستر اٹھا کر مسجد جا نہ سکے، لیکن خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ یہ مسجدیں بھی زبردست انصاف کی جگہ ہیں، جہاں امیر اور غریب دونوں ساتھ مل کر اپنے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اس دنیا میں محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، اور یہ نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کتاب میں عورتوں کو پردے کا حکم ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، کیونکہ اختلاف شخصیت کو بیاں کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ اس دنیا میں ایک نسل کی گئی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور وہیں تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہوتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود رب آپ کو عزت کی نعمت مسلسل دے رہا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا حساب عنقریب سخت ترین ہونے والا ہے۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں وہ ہے
जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। आसानी का इंतज़ार करना भी इबादत है, क्योंकि आजमाइशें हमेशा नहीं रहती। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़े आवाज़ है। कभी भी किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती बांधे मत रखना, क्योंकि आपका ऐसे करने से उनकी सारी तवज्जो आज़ादी की तरफ होगी। कश्ती भी बिल्कुल रिश्तों के जैसे होती है, क्योंकि जब तक छेद ना हो आराम से चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, क्योंकि कभी कभी आपको हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सीधे दरख्त और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। तकलीफ इंसान नहीं, उनके लहजे देते हैं, और कभी कभी इंसान के अल्फाज एक हंसता बसता इंसान मार देते हैं। खुशी रूह का वो मकाम है जहां आप हर चीज़ से मुतमईन हो जाते हैं। इस दुनिया में आपका हर अमल अपने नतीजे के इंतज़ार में होता है। जिंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। इस दुनिया में हर चीज़ का सदका होता है, और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचे गिराना। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों में सबसे मीठी ज़बान मतलब की होती है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। वो इंसान कभी भी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहे हों। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते या जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैया जल्दी ही ये एहसास दिला देता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दूसरों की दर्द की वजह नहीं बनते। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ, लेकिन अल्लाह एक तेरा ही दर है जहां कभी कोई ताना नहीं मिलता। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अगर मुझे मेरे अमल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ ना होता। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। दुआ और यकीन दोनों नजर नहीं आते, मगर ये दोनों वो रंग लाते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानना, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा हो जाता है। अपनी जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। तौबा करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। खुद पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर सहारे ही बेसहारा कर जाते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर फिर भी क्या क्या दिखा देता है। लोग चाहें तुमसे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर कभी नहीं छीन सकते।
इंसान जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए दुआओं का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। अगर तुमसे कोई कुछ मांगता हो तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया कि तुम देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखा करो। वफा करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये खासियत खून और नस्लों में पाई जाती है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलकर ही रहेगा। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि याद रखो हमेशा मीठा फल चाकू की नोक पर होता है। अकेले रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हो या आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। हजरत अली से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो हजरत अली ने फरमाया कि जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, फिर देखना तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उसका हमें इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकिए। पहला वालिदैन, दूसरा बच्चे, और तीसरा गमज़दा इंसान। अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रतें होती हैं उस दिल में अल्लाह कभी नहीं बसता। नमाज मट्टी के इंसान को सोने का बना देती है। इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, बल्कि नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। एहसान करना और दरगुजर करना। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली ने फरमाया, हमेशा इखलाक से बात किया करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी एक बार भी हकीकत बयान कर देते हैं तो सबको बुरे लगने लग जाते हैं। अल्फाज चाबियों के मानिंद हैं, इसलिए इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह को बंद या दिल खोले जा सकते हैं। इस दुनिया में एहसास क्या है? दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना असल एहसास है। हम इंसान भी कितने बेकदरे हैं कि जब गर्मियां गुजर जाती हैं तो हम इंसान साएदार दरख्त भी काट देते हैं। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। इस दुनिया में इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है।